So students, we have two questions over here. We know the formula magnetic force acting on a charged particle. So this is a charged particle Q, which is moving with velocity V in the magnetic field. So it is moving with velocity V and it is moving in the magnetic field. So here it is clearly written that means you have a proton, so its charge is 1.6 into 10 to the power minus 19. That's fundamental charge. And velocity is given to you. Magnetic field, magnitude of magnetic field is also there. And theta, the angle between the velocity and B. Yes, that's the angle between V and B is also given. That is 30 degree. So what's the force, students? Have you calculated it? What's the answer? Yes. 3 into 10 to the power minus 12. Yes, that's the correct answer. So 1.6 times 19 coulomb. Into velocity. So that's your 1.5 into 10 raised to power 7 meter per second into B, that is your magnitude of magnetic field, into sine 30 degree. So sine 30 degree is, it's 1 by 2. So that's equals 1 by 2. And if you put these values, you get to 3 into 10 to the power minus 12 Newton. Okay. Now, this is the magnitude. So always look here at the question, find the force. So he is not asking you the magnitude of force. He's asking you the force. So then you have to write the force. The force equals to its magnitude. And then you have to tell its direction also. So that's only the magnitude. Now what will be the direction of the force? So the direction of the force will be perpendicular to the direction of V cross B. Okay. So what is V cross B? So here actually not much is given to you regarding the direction. So the question ideally says find the magnitude. So we can't say much about the direction. We'll study direction in the next question. So let's keep the question up to this point only. Okay. Got it, students? Yes. Similarly, can you tell me, at least you can tell me the magnitude. What is the magnitude of the force acting on this Q? So Q, helium, alpha particle, helium nuclei. So charge on it is +2. So +2 E. So that's a charge, and velocity you have to convert this kilometer per second to meter per second. So that's 3 into 10 raised to the power 7 meter per second. Now this is a good question. So first one was just a warm-up question. But yes, this is a good question. Okay. Students, you have actually in your book, the book wants you to get familiarized with the possible ways in which you can make this axis, and especially as per the need, you draw the axis. Okay, so if we are talking about this question, so how do we set the direction? See,
from north to south. So the field is horizontal here. Yes. So how do we draw these horizontal fields? See, this is your vertical. This is this. This is just like your wall, okay? Just like your wall. This is your wall. This is wall plane. Got it? So that's your height of the wall, and that's the length of the room. Okay, let us think it like this. Okay, now this is your origin, and this will be your z-axis. Yes, and this is your x-axis. Normally we take the floor as x-axis and y-axis, so normally we draw the floor here also like y-axis. Okay, so that's positive y-axis. So there are two ways we can take this as positive y also, and we can take this also as, but you will not be able to, like, this is hidden behind this, so how will we writing it? How will we drawing it actually? So this is your x-axis, this is your z-axis, and so let us draw it in dotted. Okay, students. So now this is your floor. Okay, that's your floor. Yes, that's your floor. Got it? It's very important to visualize these figures in this chapter. Now, do you assume the floor? Yes or no? That's your floor. So where's the direction? So direction is from south to north. So you can assume this as, so that's the direction. Okay, south to north. So you can say that this is direction is parallel to y-axis. Yes or no? Yes, students. Yes, sir. Direction of B. See, first of all, let us find the magnitude and then we will finding the direction. Right? Good. So what is the direction of force? What is the magnitude? Sorry, what is the magnitude of force here? F is equals to, come on, all of you have calculated it. Yes, Q V B sine 9.6 into sine 10 minus theta. Okay, so everybody will write the answer in the chat box. What's your answer? Tell me, come on. What's your magnitude? Yes. Rahul, okay, good. Yes, what about others? Come on. Mansi, yes, that's correct. Okay. You have not written the units. Okay, Vipul. Bharti, okay. Anshika, okay. Himanshu, Prachi, Neha, Vinay. Vinay, check your answer. Okay. Okay. So you people are getting the correct answer. Yes, come on. Pooja, Harsh, Rahul, Riddhi, Sangeeta, Anupma. Yes, you are getting correct answer. Don't write small n, write capital N. Okay. So students, what are you getting? That's 3.2 into 10 raised to the power minus 19 into 3 into 10 raised to the power 7 into 1 into sine 90, that is again 1, right? And this comes out to be 9.6 into 10 raised to the power minus 12 Newton. Okay. So you have to tell that in which direction this force is acting. So that's the direction. South to north. So south to north.
So that's the direction. How will you be drawing the direction? So you will be drawing the direction like this: north, south, and east and west. Got it? Students, very important to understand how to draw this diagram. Okay. So now where is your direction of B? So that's the direction of B. Yes, right. That's my B. Okay. Now what's your direction of because the direction is between from V to B, you have to move the fingers of your right hand. Where is your V? Let us see. It is projected upwards. So it is projected upwards. So it means that is the direction of V. So students, B is along positive y-axis. This is a positive y-axis and this is a positive z-axis. Agreed? Yes? So tell me in which plane you have V and B. See, V is in V, your velocity is along positive z-axis. Students, always do these things step by step, okay? B is along positive y, or you can say B is parallel to y-axis. You can say like this. You can also say parallel to. That's also correct. Parallel to positive y-axis. That's also correct. So now tell me the direction of V cross B. Where will be V cross B? Because that will be the direction of your force, right? Yes. So where is the direction of V cross B? So F is equals to QV cross B. So where will your F? See, F is perpendicular to the plane containing V and B. Okay. So where will your F be? That's your right hand rule. Yes. Cross product rule. Yes. By cross product, you have found this direction. Yes. Right hand rule. Is this clear, students? So we'll be finding the magnitude separately and then we'll finding the direction by a right hand rule. So tell me, if you move your fingers from here to here, see this angle is, of course, this is 90-degree angle, okay? Don't get confused. See, we have drawn this y like this is x-axis, this is. So this plane, you can say, which plane is this? This plane. So that's your ZY plane, students. Yes. So that's your ZY plane. So your this V and B, in which plane they are? V and B. बेटा बोलो ना, why don't you people participate? हाँ, गलत हो सकता आंसर, उससे ज्यादा क्या होगा? टेल मी, वी और बी किस प्लेन में हैं? वाई जेड प्लेन. बस क्या क्या दिक्कत है इसमें? lie on YZ plane, as simple as that. Yes. So now F will be perpendicular to this plane. So perpendicular to this plane, you have only one choice. Either it is plus x-axis or minus x-axis. Yes. Now tell me what it will be. Put your fingers of right hand on this B, students. Put your fingers on right hand and rotate them towards
V. Come on. Then where will your thumb? Your thumb will be pointing in this direction, and that is your plus x-axis. Yes or no? Yes, sir. तो बेटा आंसर में विल यू राइट प्लस एक्स एक्सिस? व्हाट यू आर गोइंग टू राइट? जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया है हमेशा आंसर उसी फॉर्म में देना है। जो आपने अपनी तरफ से ये एक्स वाई जेड मानना है, डेट इज फॉर योर कन्वीनियंस। क्वेश्चन था, क्वेश्चन में डायरेक्शन थी नॉर्थ टू साउथ, यानी कि हमें आंसर भी इसी में देना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो आप बताओ मुझे किस डायरेक्शन में ये आपका आंसर, क्या डायरेक्शन हुई इसकी? अरे बोल दो बेटे, दिखाई दे रहा है ना तुम्हें? एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस। ठीक है। बहुत आराम आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे काम कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम से इतने अच्छे से फिगर बना रहे हैं। इसीलिए आराम आराम से बनाओ आप भी फिगर, है ना? फिगर बनाना सीखो, चैप्टर करना तो है, प्रॉपर एक्सिस बनाना सीखो। चलो डन? नो सर। ओके, करो करो। चलो आंसर तो लिखें अब इसका, तो फोर्स तो लिखें मैग्नीट्यूड के साथ। तो पहले लिखें इसका, इसका मैग्नीट्यूड लिख लो आराम से। ये आपने निकाल ही रखा है, ये मैग्नीट्यूड निकाल रखा आपने इसका, लिख लो आराम से मैग्नीट्यूड। 9.6 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन। अब डायरेक्शन बता दो इसकी, टुवर्ड्स, कितनी फोर्स है टुवर्ड्स? ईस्ट आएगा या वेस्ट आएगा इसमें? हमने ये डायरेक्शन जो है, देखो स्टूडेंट्स, अब भी V क्रॉस B करना था, कर क्या रहे हैं? B क्रॉस V। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आंसर लिखने वाला हूं, लेकिन कोई बोल ही नहीं रहा कुछ भी। क्या करे बेटे, ये एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है बिल्कुल भी। लिखा है मैंने, बाय क्रॉस प्रोडक्ट पुट योर फिंगर्स ऑन V, मूव डेप्थ टुवर्ड्स B। तो किधर घूमेगा ये? ऐसे, राइट? तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अगर इधर से इधर डायरेक्शन होती y से z, तो क्या आता आपका x, लेकिन अब क्या है z टू y। तो कहां आएगा अब आपकी डायरेक्शन? माइनस एक्स एक्सिस। क्या आएगा? माइनस एक्स एक्सिस। और माइनस एक्स एक्सिस में कौन सी डायरेक्शन आपकी? एग्री है सब इस बात से? यस और नो? तो जो आपका आंसर आया, तो ये आ गई अब आपकी फोर्स। तो देखो स्टूडेंट्स, ओके? तो यहां क्या लिखूं? माइनस एक्स एक्सिस लिखूं या वेस्ट लिखूं? क्या लिखूं बेटा? वेस्ट। वेरी गुड। चलो आराम से लिखो, बिल्कुल वी आर नॉट इन हरी। बिल्कुल आराम से डायग्राम बनाओ एकदम अच्छे तरीके से, बिल्कुल कोई जल्दी तो है नहीं बेटा बिल्कुल भी। अब जो नोट करता चला जाए, जिसका वर्क डन हो जाए, रिटर्न वर्क, वो मेरे को मैसेज डालता चला जाए।
written work done. Okay. Okay, Khushi, Riddhi, Vinay, Neha, Veena, Vinay, Karthik, Anjali, Rahul, Aditya, good Aditya, Sangeeta, Harswami, Mansi, Prachi, Anshika, Vipul, Neha, Bharti, Himanshu, Anupma. Okay. So a lot of students have done the work. Devesh, Siddhi, Angad, Tushar, Yash, Gaurav Rana, Tushar, good. Yash, Gaurav, Angad. Who is left? Pooja, Bhumika, Samir, Tanya. So that's good, students. All done? Shall we move forward? Yes, sir. Okay, good. So, students, now you can write your homework, two questions for practice, similar two questions, exactly similar, which are there in your book. Move fast. All of you have moved fast. Yes, sir. Yes, sir. Good. So, so the questions, page 268. तो ज़्यादा होमवर्क नहीं देंगे, बस आपको थोड़े से क्वेश्चंस दिया करेंगे, मैक्सिमम अप टू 5, ठीक है ना? बस और बाकी आपकी मर्जी है, जो आपको रीड करना हो बुक से, बुक आपके पास है। चलिए, तो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर एनसीईआरटी में और इस बुक में थोड़ा सा आगे पीछे है, हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ओके, तो चलिए, पेज 268 ओपन किया आपने। आपको सेकंड कॉलम, इसमें सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम में लिखा हुआ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस लिखा है। यस, सर। ओके, तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चंस बिल्कुल जो है ऐसे ही है जैसे हमने अभी किया है। थोड़ा सा जो है आप क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपको आता ही है, पिछली क्लास में भी किया था आपने। नहीं तो गूगल पे सर्च डालना क्रॉस प्रोडक्ट और आपको पता आ जाएगा, ठीक है? चलिए, टाइम बचा तो मैं भी बता दूंगा। नाउ, so students, these are the two questions that you have to practice so that you have better command on this topic. Okay, shall we move forward on the next topic? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. So first of all, do these two questions, and after doing these two questions, then attempt the homework questions with interest. Okay, so I've told you the process how to do it. Now I'll be doing the next topic. All of you have your NCERT book, so you can read little bit theory from it if you want. See here,
Now we will be, this is topic 4.2.3, that is magnetic force on a current carrying conductor. So we have just studied magnetic force on a charge Q, that was single charge, and now so only one charge was moving. Okay, now you have lot of charges which are moving. So magnetic force on a current carrying conductor. So some of the time we call it current carrying conductor, even rod also, it's the same thing. Same formula can be used for wire, rod, whatever it is. Okay, so same formula. Okay, so students, we have you can assume that you have a rod is given to you. This is the rod, or you can say it's a conductor. Okay, and current is flowing through this. So this part of the conductor, obviously it is connected with battery and everything, right? So I'm just taking a portion of it, only the wire with the current. So current is there and our conductor is there. So now magnetic force, of course magnetic force कौन लगाएगा बेटा? तो ये कहाँ है? Placed in magnetic field. Okay, तो ये नहीं भूलना है. तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर किसने लगाई? मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड ने. यस, ओके. सो वी हैव ए मैग्नेटिक फील्ड हियर. नाउ we know that when there is only one charge, then the force on, so we have to assume that this area of cross section of this wire is A. Let us assume the length of this wire as L. Any problems in choosing it, students? ये तो कह सकते हैं ना. चलिए, वी नो ऑलरेडी फोर्स ऑन, सपोज इसको क्यू मान लो, चलो इस बार कैपिटल क्यू लिख लो. ओके, तो फोर्स ऑन क्यू मूविंग विद वी, राइट, इन मैग्नेटिक फील्ड बी. तो कितनी फोर्स लगती है इसके ऊपर? F इक्वल्स टू, बोलो बेटा, Q V क्रॉस B. यस और नो? यस और नो? Yes, sir. तो बस अब आपको करना क्या है, बिल्कुल इन्हीं लाइंस पर आपको रॉड के लिए भी फॉर्मूला लिख देना बस. अब आपका Q किसके इक्वल हो जाएगा? बात ये है, V क्या हो जाएगा आपका? V हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स जो मूव कर रहे हैं. सारे चार्ज कैरियर तो मूव नहीं कर रहे ना. क्या प्रोटॉन भी मूव कर रहा है? नो. मतलब क्या जो मीन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ओनली दे आर मूविंग. तो मोबाइल चार्ज कैरियर्स, ओके, उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये आपने पढ़ा है. तो v ड्रिफ्ट वेलोसिटी में चेंज आएगा, b तो सेम रहेगा ही रहेगा. और ये q की वैल्यू क्या होगी यहां पर? बात ये बताओ, टोटल चार्ज निकालना है मुझे. टोटल चार्ज बताइए, टोटल चार्ज कितना होगा? जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा. टोटल चार्ज किसका इक्वल होता है स्टूडेंट्स? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने पढ़ा था.
Q is equals to Ne. Agreed or not? अरे बोलो बेटा. Yes. n कितना अब इसमें, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कितने हैं, ये तो ठीक है, ये तो हम समझ गए. n कैसे निकाल लेंगे? नंबर डेंसिटी सबको पता है. नंबर डेंसिटी क्या होता है, किया आपने पिछली क्लास में? यस स्टूडेंट्स, नंबर डेंसिटी n इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. यही तो होता है. यस, नंबर डेंसिटी स्मॉल n से लिखते हैं, नंबर ऑफ चार्जेस कैपिटल N से लिखते हैं. ठीक है, तो क्या लिखेंगे? वॉल्यूम क्या होता है? सपोज इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ L है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा रॉड का? ए इंटू एल. होगा नहीं होगा? तो n की वैल्यू निकालनी थी ना आपको, तो n क्या है आपका? n इज इक्वल्स टू स्मॉल n इंटू ए इंटू एल. आ गया? यस और नो? तो टोटल चार्ज आ गया अब आपके पास. तो टोटल चार्ज, इसको कैपिटल क्यू लिख लेते हैं. तो टोटल चार्ज कैपिटल क्यू कितना आया? नंबर ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स कितने हैं? NaL. और एक पर जो चार्ज है उसको हम मान लेते हैं Q. हम एक जनरल केस कर रहे हैं. ठीक है, ये भी E है, ये Q है, जनरल चार्ज, टोटल चार्ज. एक्चुअली में तो यही होता है. ठीक है, तो E को हम क्या लिख लिया हमने? E की जगह Q लिख दिया, तो N की जगह ये लिख दिया NaL. कोई प्रॉब्लम है इसमें? बताइए, है कोई प्रॉब्लम? No, sir. तो Q किसके इक्वल आ गया आपका? NaL इंटू Q. ये स्मॉल q क्या है? वेयर Q इज द चार्ज ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर इन द कंडक्टर. यस, ओके स्टूडेंट्स. तो ये टोटल चार्ज इन द कंडक्टर, ये वो टोटल चार्ज है जो मोबाइल है. राइट, कौन सा? मोबाइल. इज दिस क्लियर? सब समझ गए अच्छे से? जो मूव कर रहा है विद ये, तो ये टोटल इतना चार्ज जो है आपका मूव कर रहा है विद वेलोसिटी vd. तो बताइए F क्या आया? फोर्स ऑन द, इन चार्जेस पर जो फोर्स लग रही है, तो फोर्स ऑन द चार्ज कैरियर्स, क्या ये क्या लिख रहे हैं अब हम? फोर्स ऑन द, क्या लिख रहे हैं? फोर्स ऑन द मोबाइल चार्ज कैरियर्स ड्यू टू बी. भाई यहां भी तो आपने ये लिखा था, फोर्स ऑन क्यू मूविंग विद vd इन बी. तो फोर्स ऑन क्यू यहां क्या है? बहुत सारे चार्ज कैरियर्स हैं, है ना? तो उन सब का टोटल चार्ज लिख दिया हमने यहां पे. फोर्स ऑन द, तो कितनी फोर्स लग रही है इनके ऊपर? तो जो फोर्स लगती है वो चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करते हैं. ज्यादा चार्ज तो ज्यादा फोर्स, कम चार्ज तो कम फोर्स. इज दिस क्लियर? और चार्ज तो आपको पता स्केलर क्वांटिटी है. फर्स्ट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी? एडिटिविटी. सिंपल एडिशन कर सकते हैं आप चार्जेस का. यस, क्योंकि चार्ज कैसी क्वांटिटी है?
स्केलर क्वांटिटी, तो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस में आपने किया। ओके स्टूडेंट्स, डन। वैल्यू लिख दिया आपने, NaL इंटू क्यू, तो ये तो था आपका कैपिटल N एक तरीके से, राइट, इंटू क्यू इंटू VD क्रॉस B। है कोई प्रॉब्लम? नो सर, नो सर। बस स्टेप बाय स्टेप लिखना आपको, आराम से, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं है, समझ समझ कर, बिल्कुल आराम आराम से। तो स्टूडेंट्स, अब आपको करंट डेंसिटी भी पढ़ी आपने पिछली क्लास में, पढ़ी या नहीं पढ़ी? करंट डेंसिटी, जिस तरह नंबर डेंसिटी था उसी तरह करंट डेंसिटी स्मॉल लेटर J से डिनोट करते हैं, आपको पता है या नहीं? और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी क्या होगा? जैसे इसमें आपका क्या था, नंबर डेंसिटी नंबर अपॉन वॉल्यूम, करंट डेंसिटी है तो क्या क्या होगा, करंट अपॉन वॉल्यूम। ये मुश्किल चीजें हैं क्या ये जो है, मतलब? हाँ, तो करंट अपॉन वॉल्यूम क्या है आपका बेटा? जैसे ऊपर लिखा है वो करंट डेंसिटी, नंबर डेंसिटी था तो नंबर लिखते चले गए ना, ये करंट डेंसिटी है तो करंट लिखते चले, नीचे ऐसे ही AL। आसान है या मुश्किल है ये बताओ मुझे? तो अभी करंट डेंसिटी का ये बाय डेफिनेशन ये फार्मूला आ गया, आ गया नहीं आ गया? और एक फार्मूला और किया आपने करंट डेंसिटी का, दैट इज इक्वल्स टू NQVD। इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बेटा, ये दो फार्मूले याद हैं या नहीं है? है सर, नहीं है है तो अब कर लो, ये कौन सा बड़ी बात है भाई? इसकी डेरिवेशन तो पिछले चैप्टर में, ये तो मैं डेरिवेशन बताऊंगा आपको, ये तो डेफिनेशन है, ये तो करंट डेंसिटी डेफिनेशन है, और एक ये करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, बस। ओके, और आप देख रहे हैं मुझे यहां पर ये चाहिए, NV चाहिए, आई वांट N, आई वांट VD, ठीक है, और आई वांट करंट आल्सो, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर, तो मुझे आंसर करंट की फॉर्म में देना है ना। तो मैं क्या करूंगा, पहले इससे J बनाऊंगा करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी से फिर I बनाऊंगा। क्लियर हो गई बात? स्टेप बाय स्टेप। तो पहले क्या इंट्रोड्यूस करूंगा मैं, पहले VD को हटाऊंगा, तो क्या J से, चलो हटा दो, तो क्या आ गया बताओ, चलो खुद ही बता दो। N, तो हमने लिख लिया था, ये तो टोटल N है, राइट, वो हमने यहां भी लिख रखा है, ये कौन सा बड़ी बात है? टोटल नंबर था ना ये आपका चार्ज कैरियर्स का, टोटल नंबर ऑफ कैरियर्स। ओके, चलिए, तो ये आपका था टोटल नंबर ऑफ चार्ज। तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं, इसके कोई मार्क्स आपको एग्जाम में मिलने वाले नहीं हैं। तो सर एग्जाम में मार्क्स किससे मिलेंगे? सिर्फ इन स्टेप्स के जो मैं यहां लिख रहा हूं। ओके, बात आई कुछ समझ? यस सर, यस सर। तो ये तो आप लिख सकते हैं। अब आपको पता है भाई N इंटू क्यू, एन क्या होगा, नंबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। देखो कितना आसान है, आपको यहां जाने से जरूरत नहीं है, तो सिर्फ आपको समझाने के लिए किया ना बेटा सब कुछ। यहां आपको टोटल चार्ज लिखना है, टोटल चार्ज क्या होता है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंटू चार्ज ऑफ वन कैरियर, और नंबर ऑफ चार्ज कैरियर क्या होते हैं, नंबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, बस खत्म। चलिए अब N, Q और VD, इन तीनों इधर क्या लिख दोगे आप बताओ? अरे J लिख दें भाई, हाँ, यस और नो? यस सर। बाकी चीज ऐसे कैसे लिखा रहने दो, बाकी ऐसे ऐसे लिखा रहने दो, मत टच करो बाकी किसी भी कहानी को, ऐसे ऐसे लिखा रहने दो, क्या फर्क पड़ेगा? तो फर्क पड़ेगा क्या उससे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्रॉस प्रोडक्ट है, अब J और B के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, क्या क्या इशू है? कोई इशू नहीं, बिल्कुल भी। तो F इक्वल्स टू, और अब मैंने बताया था पहले इसको यूज करूंगा मैं,
और फिर उसके बाद मुझे करंट लाना है, क्योंकि ये मेरे को गिवन है करंट आई, तो मेरे करंट पे आंसर चाहिए। तो अब जे की जगह फिर लिख दूंगा, या जे इंटू ए एल लिख दूंगा। जे इंटू ए एल क्या आएगा यहां बताइए मुझे? जे इंटू ए एल, या मुझे आई चाहिए, सिंपली आप जे की वैल्यू पुट कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। करंट डेंसिटी हाँ भाई, क्या बना? आई, ये स्टूडेंट्स एक बात है यहाँ पे मैं आपको बताऊं, करंट डेंसिटी में ना वॉल्यूम नहीं चलता, क्योंकि करंट जो है इसमें एरिया चलता है। ये थोड़ा सा आप यहाँ करेक्ट कर लो बस, कोई बोला भी नहीं, ठीक है ना? और जो है जब यहाँ आंसर निकाल रहे हो, आंसर तो मेरे को पता है क्या है। तो स्टूडेंट्स करंट डेंसिटी जो है उसमें करंट अपॉन एरिया है, क्या है? क्यों ऐसा करंट अपॉन एरिया, और सर वहां वॉल्यूम क्यों था, ये ऐसा क्यों कर रहे हो आप? बिल्कुल सही है, समझो बात को। जो करंट की डेफिनेशन है, डेट इज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पासिंग थ्रू ए, टोटल चार्ज पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू कितने चार्ज कैरियर पास किए, मुझे तो करंट की जो डेफिनेशन है वो सिर्फ इस एरिया से रिलेटेड है। आई बात समझ में? इज दिस क्लियर? और यहां मैं टोटल चार्ज कैलकुलेट कर रहा था, तो पूरे वॉल्यूम में होता है चार्ज तो, लेकिन यहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के थ्रू है। तो चलिए अच्छा हो गया ये, लेकिन आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो पिछले चैप्टर में आपने किया करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए, मैंने यहां से ऐसे कैसे लिख दिया। मैं सोच रहा था कि बच्चे बोल लेंगे, लास्ट तक इंतजार कर रहा हूं मैं, लेकिन कोई बोल ही नहीं रहा कुछ। मतलब जैसे करा दे वैसे वैसे हाँ हाँ हाँ, ये ये बात ठीक नहीं है। मैंने कहा आपको कि भैया तो आप पिछली क्लास में पढ़ चुके करंट डेफिनेशन, करंट डेंसिटी डेफिनेशन है बेटा। चलो ध्यान रखो, ठीक है? तो F इज इक्वल्स टू, तो यहां से I क्या लिख सकते हैं आप? J इंटू ए, तो ये क्या आ गया? J इंटू ए, आई आ गया। अब I जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो अब ये वेक्टर्स किस पे चला जाएगा? ये वेक्टर L पे। तो ये बन गया आपका फार्मूला, F इज इक्वल्स टू I L क्रॉस B। तो स्टूडेंट्स आपके पास पहले फार्मूला था, एक चार्ज मूव कर वेलोसिटी v से, तो F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी। अब ये है, तो इसका फॉर्मूला आपके पास आ गया, F इज इक्वल्स टू आई एल बी। ओके, तो सर ये L की डायरेक्शन कहां से होगी, ये कौन सा वेक्टर आ गया? जो आपकी करंट की डायरेक्शन है। ओके, वही L की भी डायरेक्शन होगी। ये लो, बन गई बात। इज दिस ओके स्टूडेंट्स? तो थीटा अगर 90 है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा F का? आई एल बी हो गया, यस और नो? तो अगर मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? F अपॉन, अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। यस सर। हाँ, ये तो बनी कुछ बात इस बार।
इतना आराम आराम से काम करा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल एकदम आराम आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे। तो स्टूडेंट्स क्या बना? आप यहां से b निकाल सकते हो, b इज इक्वल्स टू एफ अपॉन आई एल। ओके, और क्या निकाल सकते हो आप? फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल सकते हो, फोर्स पर यूनिट लेंथ b निकाल सकते हो। और क्या निकाल सकते हो? F डिवाइडेड बाय L, तो क्या बन जाएगा? IB, फोर्स पर यूनिट लेंथ। स्टूडेंट्स इसके ऊपर दो न्यूमेरिकल करोगे इजी इजी। हाँ, इसके ऊपर तो बेस्ड है, फोर्स पर यूनिट लेंथ के ऊपर बेस्ड है एक्सरसाइज क्वेश्चन 4.5। कर दो आज इसको, ठीक है? कर दोगे? हम्म। और उसमें थीटा 90 नहीं है तो आप थीटा यहां ऐड कर देना, क्योंकि ये क्या है, साइन थीटा। अगर थीटा 90 नहीं है तो थीटा ऐड करते चले जाओ। ओके, ये साइन थीटा इसमें तो नीचे चला जाएगा ना इस फॉर्मूले में। सो दैट इज एफ अपॉन आई एल बी साइन थीटा। अगर थीटा नहीं है तो ऐड कर दोगे ना? अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो बस तो खोने के लिए तो कुछ है नहीं आपके पास, न्यूमेरिकल ट्राई करोगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन 4.5। और चलो बस ये ट्राई करो, चलो 4.5 ही ट्राई कर लो तुम, 3 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे पास। हम्म। और करने को आप 4.6 भी ट्राई कर सकते हो, वो भी बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। 4.6 में डायरेक्ट फार्मूला लगना आपका, ये डायरेक्ट बिल्कुल। तो 4.6 में डायरेक्ट फार्मूला, 4.5 में एफ बाई एल। बस करो दोनों क्वेश्चन। ओके, चलो 4 क्वेश्चन हो गए अब आपके, 2 एसएल से हो गए, 2 एनसीईआरटी से। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.